Hello, dear students. Good morning to all of you, and once again, welcome to the course subject Electrical Circuits and Network of the branch Electrical Engineering. So, before starting our second lecture, I have to say you that in the lecture number 1, I have explained how to find the arguments of a complex number, and that is very important. It is because once the single phase AC will started, the how to find the argument of a complex number, it will comes throughout the topic. So I am repeating you to go and learn how to find the argument of a complex number. So in the lecture number 2, I will be going to explain about the electric circuits. After that, I will see the examples of electric circuit, and then we will see the types of circuit elements. After that, I will discuss active elements, and at the last of this lecture session, we will see passive elements. Okay, so electric circuit. The electric circuits are closed loop or path which forms a network of electrical components where electrons are able to flow, and this path is made by using electrical wires and is powered by a source like a battery. That means to form a electric circuit, there will be electric elements, circuit elements, sorry, there will be circuit elements, and the path is made by using electrical wires. Okay, and to flow the electric current in the circuit, we have to power that circuit by using a battery. Okay, so battery will act as a source. Now, if an electrical circuit is completed, that is if there is at least one closed loop, then and only then electric current can flow. So this is very important. When electric current can follow, electric current will follow only in that condition when the circuit have at least a single closed loop. Okay, then in that single closed loop there must be a some battery or active elements. Okay, so I will discuss active elements later. So to flow an electron or electric current, there will be a closed loop, and in that closed loop there will be at least a battery, those who circulate delivers the power. Okay, the circuit elements which delivers power is the source, whereas the circuit elements which absorbs power act as a load. ठीक है, तो वैसे सर्किट एलिमेंट जो कि पावर को डिलीवर कराएगा, ठीक है, जैसे मेरा बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब पावर को डिलीवर कराएगा, तो ये मेरा सोर्स कहलाएगा. बट जो पावर को एब्जॉर्ब करे वो लोड कहलाता है. ठीक है,
examples of a simple electric circuit. So here I have taken one circuit diagram in which there are two bulbs, okay, one switch and one source of 120 volt. So this is a source, say this is a battery, okay, this is a battery of 120 volt, and this is a switch, and these two are electric bulbs, okay. And I have taken here 60 watts of two bulbs, okay, and these all are connected in series. So when this switch is on, then see here, and this switch is on, then what happens? There a closed loop forms. There closed loop is forms, so electric current will start flowing, and these two bulbs get glow. So when this switch is off, what happens? Circuit get break, okay. Then our circuit is not closed loop, okay. Then in that case the electric current will not flow. So हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब क्लोज लूप रहेगा, ठीक है, और क्लोज लूप के साथ साथ एक बैटरी भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है, जब ये ऑफ होगा तो क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑफ होने की वजह से यहाँ पर सर्किट ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक करेगा तो फिर ये क्लोज लूप रहा नहीं, और क्लोज लूप नहीं रहा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए क्लोज लूप होना जरूरी है, और साथ ही एक बैटरी या ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि क्या करे, पावर को डिलीवर करे, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल है ना, बैटरी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल को छोटे लाइन से और पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चूंकि ये क्लोज लूप है, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलने का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आर आई, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस आर है, करंट फ्लो करेगा, आर इंटू आई, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसका जितना वोल्टेज होगा सारे वोल्टेज का सम इस वोल्टेज के बराबर होगा, जो कि KVL है, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि जो भी मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नाउ फ्लो ऑफ करंट लीड्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। तो I have categorized the circuit elements in two parts, that is first one is active elements and the second one is passive elements, okay, right. Now
एक्टिव एलिमेंट्स. व्हाट इज एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स? ठीक है, तो एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स कैन डिलीवर अ नॉन जीरो एवरेज पावर इंडेफिनिटली. मतलब कि जो भी मेरा एक्टिव एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा, पावर को कंटिन्यूअसली डिलीवर करेगा. ठीक है, some common examples of active components. पहला है मेरा वोल्टेज सोर्सेस. ठीक है, वोल्टेज सोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट्स कैसे है? तो अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, सपोज बैटरी वोल्टेज सोर्स है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स आवर बैटरी इज डिलीवरिंग पावर. ठीक है, बैटरी इज डिलीवरिंग पावर. सो बैटरी क्या हुआ मेरा, बैटरी इज अ सोर्स एंड चूंकि ये पावर को डिलीवर कर रहा है और ये कंटिन्यूसली पावर डिलीवर करेगा, इसलिए ये एक्टिव एलिमेंट्स है. नेक्स्ट इज करंट सोर्स. ठीक है, करंट सोर्स इज ऑल्सो सप्लाइंग करंट कंटिन्यूसली. ओके, ये भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली करंट को सर्किट में सप्लाई करेगा. दैट्स वाई ये क्या करा, पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है कंटिन्यूसली. दैट्स वाई करंट सोर्स इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स. नाउ generators. Okay, we all know that generators such as अल्टरनेटर्स हो गया, जो कि मेरा जनरेटिंग स्टेशंस पे होते हैं मोस्टली. ठीक है, तो वो अल्टरनेटर्स क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर करता है. एंड डीसी जनरेटर्स. ठीक है, तो डीसी जनरेटर्स ये भी क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा कंटिन्यूस. दैट्स वाई दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स. अब all different types of transistors such as bipolar junction transistor, MOSFETs, field effect transistors जिसको हम लोग FETs बोलते हैं, and JFET that means junction field effect transistor. ये सारे क्या है, ट्रांजिस्टर है. और ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, एक्टिव एलिमेंट्स का. तो अब ट्रांजिस्टर, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि वाई द ट्रांजिस्टर कम्स अंडर द एक्टिव एलिमेंट्स. बिकॉज ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर्स कैन एम्पलीफाई द पावर सिग्नल. ठीक है, जो भी सिग्नल का पावर है उसको क्या करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है. दैट्स वाई दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, एंड ऑल्सो द डायोड्स सच एज जेनर डायोड्स, photodiodes, Schottky diodes and LEDs. LEDs मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स. ये भी क्या होता है, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स. Passive elements. Okay, so I have categorized the passive elements into three. That means we have to study this, that is resistor, inductors and capacitors. These are the basic circuit elements. Okay, and these are basically the passive elements. Okay, तो हम लोग पहले देखेंगे what is passive elements. So a passive components is an electronic components which can only receive energy, which it can either dissipate, absorb or stores it in an electric field and or a magnetic field. मतलब पैसिव एलिमेंट्स वो होंगे जो क्या करेगा कि आपका एनर्जी को या तो एनर्जी डिसिपिएट करे या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और स्टोर करे. ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. जैसे रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर में आपका पावर क्या होता है, डिसिपिएट करता है. ठीक है,
डिसिपेट करेगा पावर, ठीक है। तो वो आपका हो गया पैसिव एलिमेंट्स। कैपेसिटर, कैपेसिटर भी क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, पावर को एब्जॉर्व करेगा और स्टोर करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा इन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका इंडक्टर जो है वो क्या करता है, पावर को एब्जॉर्व करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो पैसिव कंपोनेंट्स कैनॉट एम्पलीफाई, ऑसिलेट और जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आपका जो भी पैसिव इवेंट्स होगा वो ना ही आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ना ही ऑसिलेट करेगा और ना ही जनरेट करेगा, ठीक है। सो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज रेसिस्टर, ठीक है। तो रेसिस्टर क्यों पैसिव एलिमेंट्स है, क्योंकि रेसिस्टर पावर को क्या करता है, डिसिपेट करेगा, रेजिस्टर पे जो भी होगा पावर डिसिपेट करेगा, लॉस होगा पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपका पैसिव एलिमेंट्स हो गया। नेक्स्ट वन इज इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है कि पावर को एब्जॉर्व करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पावर को एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, तो पावर को डिलीवर भी कर सकता है, बट पावर को जो इंडक्टर जो है वो स्टोर करने, एनर्जी को स्टोर करने के बाद जो एनर्जी डिलीवर करेगा वो एनर्जी कंटिन्यूसली डिलीवर नहीं करेगा, वो लिमिट टाइम के लिए वो डिलीवर करेगा। और स्टोर भी करेगा तो वो मैक्सिमम एक एनर्जी होता है इंडक्टर का, है ना, उसके अब इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उतना ही वो एनर्जी स्टोर करेगा और जब भी डिलीवर करना होगा तो उतना ही वो एनर्जी को डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड होता है, ये कंटिन्यूस डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टर को पैसिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखा गया है। कैपेसिटर, कैपेसिटर भी क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पावर डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर करेगा तो ये भी एक लिमिट टाइम के लिए पावर को डिलीवर करेगा। इसलिए एज पर द डेफिनेशन कैपेसिटर comes under the passive elements. Now transformers. अच्छा, I think you all get surprised why the transformer comes under the passive elements. This is also a passive elements because transformer. What is the function of transformer? Transformer is used either for stepping up the voltage or stepping down the voltage. Okay, so in both the cases the power will remains the same on either primary side or secondary side. वोल्टेज को अगर हम बढ़ा देंगे, किसी एक साइड अगर वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उस साइड करंट का वैल्यू कम जाएगा, अगर हम वोल्टेज का वैल्यू को घटा दे तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इन बोथ द केसेस पावर्स विल रिमेन्स द सेम। ओके, सो ये भी पावर को जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सिंपली क्या कर रहा है, पावर कांस्टेंट रह रहा है। दैट्स वाई इसे पैसिव एलिमेंट्स में रखा गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।